یہ دوپہر کی کڑی دھوپ کا وقت تھا۔ بازل اس دن حد سے زیادہ تھکا ہوا تھا۔ حویلی میں سارا دن مہمان، حساب کتاب، زمینوں کے کاغذات اور اوپر سے آغا جان کی لمبی نصیحتوں نے اسے گویا نڈال کر دیا تھا۔ وہ بس کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسے پیچھے سے آغا جان کی آواز سنائی دی۔ بازل بیٹا، ایک آخری کام رہ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ وہیں رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ جی آغا جان، تمہیں ہبا کو لینے جانا ہوگا ہاسٹل سے، آج بلکہ ابھی۔ بازل نے آہستہ سے آنکھیں پھیلائی۔ آغا جان، اس آفت کی پوریا کو میں نہیں لاؤں گا، آپ ڈرائیور بھیج دیں۔ اسے سہولت سے انکار کیا تو آغا جان ہنس پڑے۔ نہیں، تمہیں ہی لانا ہے اسے، اور اب بڑی ہو گئی ہے اور شریر بھی نہیں رہی۔ بازل نے سن کر سر جھٹکا۔ یقیناً سانپ کے بچے بڑے ہو کر اژدہا ہی بنتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں آغا جان۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور کار کی چابی گھماتا ہوا نکل گیا۔ ہاسٹل کے سامنے گاڑی روکتے اس کا موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ باہر لڑکیوں کو شور اور کہکے بلند تھے اور اس سے ہمیشہ سے ایسے ماحول سے چڑ تھی۔ وہ سیدھا وارڈن آفس میں داخل ہوا۔ جی۔ وارڈن نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ ہیبا کو بلا دیجیے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ بازل کی بات پر ایک اور سوال ہوا۔ آپ کون ہیں؟ وارڈن نے پوچھا۔ بدقسمتی سے اس کا کزن۔ وارڈن نے اپنی مسکراہٹ دبا کر فون اٹھایا۔ ہیبا بیٹا، تمہیں کو لینے آئے ہیں۔ چند لمحوں بعد کوریڈور میں قدموں کی آہٹ گونجی۔ بازل نے پہلی نظر اس پر ڈالی اور پلکیں چپکنا بھول گیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ مگر نفیس سوٹ جس پر باریک سفید کڑھائی تھی۔ دوپٹہ بے سختہ ایک کندھے سے ڈھکا ہوا تھا، جسے اسے سنبھالنے کی کبھی عادت ہی نہ رہی ہو۔ لمبے گھنے بال آدھے کھلے تھے اور آدھے کلپ میں بندھے ہوئے تھے۔ بالوں کی چند شرارتی لٹیں گالوں کے پاس آ کر ٹھہر گئی تھی۔ رنگ شفاف گندمی تھا۔ آنکھیں بڑی اور سیاہ تھی، ان میں معصومیت بڑی تھی۔ ہونٹوں پر قدرتی گلابی رنگ جچ رہا تھا۔ وہ وارڈن کے پاس آ کر رکی۔ میم، میرے تو کوئی کزن نہیں آنے والا تھا، نہ مجھے گھر سے کال آئی ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کہیں مجھے اغوا تو نہیں کر لیں گے؟ اسے دھیمی آواز نے کہا، لیکن بازل سن چکا تھا۔ بازل کے جھپڑے پیچ گئے۔ بیوی، دماغ درست ہے تمہارا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں اغوا کرنے آیا، اور وہ بھی دن دہاڑے، ہاسٹل کے دفتر میں بیٹھ کر۔ ہبا نے آنکھیں سکیڑ کر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کچھ بھی کر سکتے۔ وارڈن نے قدرے مشکوک نظروں سے بازل کو دیکھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بازل نے جھنجھلا کر بٹوے سے شناختی کارڈ نکالا۔ یہ دیکھ لیجیے، اور اگر مزید تسلی چاہیے تو آغا جان سے بات کر لیجیے۔ بازل کی بات سن کر ہبا نے معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹائی۔ آغا جان کون؟ تمہارے آغا جان۔ وہ پھٹ پڑا۔ ہبا نے مسکراتے ہوئے ہونٹ سکیڑے۔ میرے آغا جان تو بہت نرم مزاج ہے، وہ ایسے غسیلے نمائندے نہیں بیچتے۔ بازل نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ مجھے صبر دے۔ وارڈن نے آغا جان سے فون پر تصدیق کی تو معاملہ صاف ہوا۔ اچھا بیٹا، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ ہبا نے بیگ کندھے پر ڈالا مگر وہی کھڑی رہی۔ میں اکیلی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ سن کر بازل کا دماغ پک سے اڑا۔ کیوں؟ میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ انداز تو ایسا ہی ہے۔ وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی۔ بازل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب چلو بھی، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ہبا اس کے پیچھے چل پڑی۔ میرا بھی وقت بہت قیمتی ہے مسٹر، میں کوئی پارسل نہیں ہوں جو اٹھا کر لے جائیں۔ پہلے بتائیے اچانک کیوں لینے آیا؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگی۔ کیونکہ آغا جان نے کہا۔ بازل نے دھان پیسے۔ اور آپ ہمیشہ ایسے ہی حکم دیتے ہیں؟ وہ رکا، پھر دھیرے سے بولا۔ آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ تمہیں بہت بولنے کی عادت ہے نا؟ پھر میں نے کندھے اچکائے۔ اور آپ کو بہت چڑنے کی ہے نا؟ بیلنس ہو گیا یہ تو۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ گاڑی کے پاس رکی رہی۔ دروازہ کھولیں گے، میں اغوا ہو کر خود بیٹھ جاؤں؟ بازل نے ناکواری سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ وہ گھر آیا۔ وہ بیٹھتے ہی سیٹ پر باتنے لگی، پھر رک کر بولی، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ یا میں اغوا کر صاحب کہہ کر پکاروں؟ اسے یہ سن کر صبر کے گھن پر بازل، او۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ نام تو بڑا شریفانہ ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی منہ بنا کر رکھتے ہیں یا آج خاص طور پر میرے لیے رکھا ہے؟ میں عام طور پر خاموش رہتا ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اچھا، مگر ابھی تو کافی بول رہے تھے، میرا مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ بازل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میں تو معصوم ہی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ معصوم اور تم مذاق اچھا کر لیتی ہو۔ اسے ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ ویسے آپ کو یاد ہے، وہ اچانک بولی، جب میں چھوٹی تھی
तो आपने मेरी चॉकलेट छीन कर खा ली थी। बाजिल ने चौंक कर उसे देखा। थोड़ी देर पहले तक तो तुम अच्छी खासी अनजान थी और अब? हिबा बेसाख्ता हंसी। वो तो बस ऐसे ही तफरी थी। बाजिल ने हैरानी से उसे देखा। और इस तफरी ने जो मुझे मशकूक बनाया वो? हिबा ने लापरवाही से गंदज गया। इट्स ओके, चलता है ऐसा। वो ऐसी ही थी, लापरवाह सी। वो सर झटक कर हंसती। उसकी हंसी खनकदार थी। बाजिल ने नजरें सड़क पर रखी, मगर दिल में अजीब सा इरताज हुआ। वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हिबा ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। तुम्हें इससे क्या? बाजिल ने आईब्रो इकट्ठे किए। बस वैसे ही पूछा। हिबा ने उसे गौर से देखा। सोच रही हो मेरे जैसी मिल गई तो? बाजिल धीरे से हंसा। फिक्र ना करो, तुम एक वाहिद तूफान काफी हो, मजीद नहीं होना चाहिए। हिबा मुस्कुराए। कैसे अपनी तारीफ समझू मैं? नहीं, बाजिल ने बगैर लगी लिपटी रखे कहा। अब वाकई बड़े बदमिजाज हैं, मगर मजा आता है आपको छेड़ने में। बाजिल का हलक तक कड़वा हो गया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, उसे वार्निंग दी। क्यों? फेल हो जाएंगे क्या? वो कहाँ बाज रहने वाली थी। वो पहली बार सीधा उसकी तरफ मुड़ा। हिबा, उसकी आवाज में सख्ती थी, मगर हिबा ने नजरें जमाई रखी। जी बाजिल भाई। बाजिल ने गहरा सांस लिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली। हिबा ने आंख दबाई। और आप भी नहीं, बस थोड़ा और लंबा हो गया है कद। गुस्सा उससे भी ज्यादा। वो मुस्कुरा दी। वैसे सच बताऊं, मैंने पहचान लिया था आपको। बस वार्डन के सामने थोड़ा ड्रामा करना था। गाड़ी एक झटके से साइड पर रुकी। बाजिल खामोश रहा। वैसे इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, मगर आपके चेहरे के तासुरात देखने थे। बाजिल ने चंद में से घूरा, फिर बेख्तियार होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। तुम वाकई मुसीबत हो। हिबा ने सर झटका। और आप? मैं गलती से तुम्हें यानी एक मुसीबत को झेल रहा हूँ, वो भी मजबूरी से। वो हंस रहा। तो फिर तैयार रहिए बाजिल साहब, सफर लंबा रहेगा। गाड़ी दोबारा साइड पर आ गई और बाजिल ने पहली बार महसूस किया कि थकन कुछ कम हो गई है, मगर सुकून, वो तो शायद अब रुखसत हो चुका था। शहर की शायरा वाकई मसरूफ थी। गाड़ियों का शोर, हान की आवाज, धूप में चमकती सड़क और अंदर बाजिल की गाड़ी में मुसलसल चलती हिबा की बक बक। उसका सर दर्द होने लगा था। वैसे बाजिल, वो खिड़की से बाहर झांकते उसे पुकारने लगी। आप कभी हंस भी लेते हैं या मुस्कुराहट पर भी टैक्स लगता है आपके? हाँ? बाजिल ने उसे नजर उठा कर ना देखा। मैं ड्राइव कर रहा हूँ हिबा, खामोशी इख्तियार करो। अब मुझ में मजीद ताकत नहीं है तुम्हारी बक बक सुनने की। ये आखिरी जुमला उसने कदरे आहिस्ता कहा। ओह सॉरी, क्या मैं सांस भी इजाजत से लेकर लूं? बाजिल ने दांत पीछे। तुम वाकई रुकती नहीं हो, तुम्हारी बॉडी के ब्रेक फेल है क्या? वो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक सीधी होकर चिल्लाई। रुके रुके प्लीज, अभी रुके। बाजिल ने घबराकर ब्रेक पर जोर से पांव रख दिया। पीछे से एक गाड़ी ने जोर का हॉर्न दिया। क्या कर रही हो तुम? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। इतनी मसरूफ शाहरा पर गाड़ी कौन रुकवाता है? हिबा ने बड़े सुकून से उंगली सड़क किनारे की तरफ उठाई। क्योंकि मुझे ये गोलगप्पे खाने हैं। चंद सेकंड खामोशी रही। बाजिल ने आहिस्ता से आंखें बंद की, फिर सर पीट लिया। तुम सचमुच पागल हो? हिबा खिलखिला कर हंस दी। और आप भी शायद मेरे ही खानदान के हैं, वरना मुझे छोड़कर भाग क्यों गए अभी तक? वो टक्का सा जवाब देने ही वाली थी। मैं तुम्हें छोड़ सकता, आगे जान मुझे कच्चा चबा जाएंगे। हिबा ने उसे घूरा। ओह, तो मैं जबरदस्ती का पैकेज हूँ? बाजिल पहली बार हंसा। बिल्कुल। वो हंसती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकली। मैं अभी आई हिबा, बाजिल ने पुकारा, मगर वो पहले ही रेड़ी की तरफ दौड़ चुकी थी। वो चंद लम्हे गाड़ी में बैठा रहा। आसपास से गुजरते लोग उसे देख रहे थे, जैसे वो भी इस पागलपन का हिस्सा हो। उसे गर्दन मोड़ कर देखा। हिबा रेड़ी वाले से जोश में बातें कर रही थी, हाथों के इशारे से आंखों की चमक बता रही थी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, वो बुड़बुड़ाया। आखिरकार दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। शर्मिंदगी से इधर उधर देखते उसके पीछे चल पड़ा। रेडी के कड़ी पहुंचा तक तेज पुदीने और इमली की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। भैया जरा तीखे बनाना। हिबा खा भी रही थी और कह भी रही थी। पानी डबल डालना। बाजिल ने मुंह बनाया। ये सब सड़क किनारे खाने की चीजें हैं क्या? हिबा ने मुड़कर उसे देखा। जी हाँ मिस्टर, ये असल जिंदगी है। रेडी वाले ने मुस्कुराकर बाजिल को देखा। भाई साहब, आप भी खाएंगे? बाजिल ने रेडी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी दुश्मन का जायजा ले रहा हो। नहीं, 2 टका जवाब दिया। हिबा ने गोलगप्पा मुंह में डाला, आंखें बंद करके खुशी से सर हिला। जबरदस्त। बाजिल को वाकई अबकाई सी महसूस हुई। हर गलीज चीज तुम खा कैसे सकती हो ये? हिबा ने अगला गोलगप्पा उठाया, उसकी तरफ बढ़ाया। ले, आप भी ट्राई करें। वो फौरन पीछे हटा। नो थैंक्स, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हिबा ने शरारती अंदाज में आंखें सुखेरी। क्या हामला औरतों की तरह अबकाइयां आ रही हैं आपको?
शट अप हिबा, वो दांत पीस कर उसे डांट लगा। ये गलीज चीजें तुम्हें मुबारक हो, समझी? वो हंस पड़ी। गलीज है तभी तो लजीज है, आप ही ट्राई करें, सब भूल जाएंगे। हिबा ने पुरजोश से अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। बाजिल ने रुख फेर लिया। रेडी वाला हंसी रोक न सका। भाई साहब, भाभी तो बड़ी शौक है। बाजिल ने घूर कर उसे देखा। वो मेरी वो रुका और एक नजर हिबा को देखा, फिर गुस्से से पार पटकता पूरा और सीधा गाड़ी की तरफ चल दिया। हिबा ने फौरन उसे आवाज दी, अरे अरे बिल तो पे करें, पूरे 300 रुपए। वो हंसते हुए उसके पीछे लपकी। बाजिल रुके तो गाड़ी के पास पहुंचकर उसे दरवाजा खोला ही ताकि हिबा उसके सामने आ खड़ी। पैसे? बाजिल ने चिंचला के बटुए से नोट निकाले और उसके हाथ पर रख दी। वो मुस्कुराती वापस सीढ़ी पर गई, पैसे दिया, फिर हाथ साफ करते हुए गाड़ी में आकर बैठी। अंदर आते उसने मासूम सा चेहरा बनाया। आपको बुरा लगा? हाँ। क्यों? वो पूछने लगी। क्योंकि मुझे सड़क पर ऐसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, पसंद भी नहीं है मुझे। हिबा की आवाज उदास हो गई। ड्रामा नहीं था, दिल चाह रहा था, बस तो किया। बादल ने गहरी सांस भरी। हर दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती है अगर साथ में कोई ऐसा हो जो गाड़ी रोक दे तो। हिबा ने कदरे जोर देकर कहा तो वो चंद में खामोश रहा। फिर गाड़ी स्टार्ट की। चंद सेकंड बाद हिबा ने आहिस्ता से दरवाजा दोबारा उससे पूछा, वैसे आपको वाकई इतना बुरा लगा? अब वो उसकी आंखों में झांकने लगी। मुझे गोलगप्पों से नफरत है, बादल ने अपनी धुन में कहा। हिबा ने फौरन रुकवा दिया। गोलगप्पों से या बेफिक्री से? उसने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम बहुत बोलती हो, वो बेजार हो, और आप वो सोचते हैं। कभी कभी रुक कर गोलगप्पे खा लेने चाहिए, जिंदगी कम संजीदा लगती है। और हल्का सा तंजिया हंसा। मुझे जिंदगी संजीदा ही पसंद है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो अचानक उसकी तरफ झुकी। एक बात बताऊं? बाजिल ने बेजारी से उसे देखा। अब क्या है? हिबा ने धीमे लहजे में उसके कान में सरगोशी की। आप पर गुस्सा भी अच्छा लगता है। गाड़ी हल्का सा डगमगाई। हिबा वो चीखा, डरे नहीं, मैं फिर गोलगप्पे नहीं मांग रही। बाजिल ने सर झटका, मगर इस बार होंठों के किनारे वाकई मुस्कुराए बगैर न रह सके। एक संजीदा मर्द और एक बेपरवाह लड़की शायरा पर वापस आ चुके थे, मगर इस मुख्तसिर से रकावट ने सफर को कुछ और ही बना दिया था। बाजिल ने दिल ही दिल में सोचा कि लड़की वाकई मुसीबत है, और हिबा खिड़की से बाहर देखते मुस्कुरा रही थी कि आदमी वाकई इतना बोरिंग है, बनता है। गाड़ी जैसे हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे के सामने रुकी, अंदर का मंजर बदल गया। पुरानी हवेली की ऊंची मेहराबें, शाम की हल्की सुनहरी रोशनी, सब जैसे किसी की वापसी के मुंतजर थे। बाजिल ने इंजन बंद किया। अभी वो दरवाजा खोलने ही लगा था कि हिबा बिजली की तरह बाहर निकली। आगा जान, उसकी आवाज सहन में गूंजी। दरवाजे के बाहर खड़े आगा जान वाकई ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें वक्त का इल्म हो कि उनकी आफत की बुढ़िया आज वापस आ रही हो। हिबा दौड़ती हुई गई और उनसे लिपट गई। आगा जान, आपने मुझे याद किया भी था या फिर अचानक याद आ गई थी? आगा जान हंसे, उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची को कोई कैसे भूल सकता है? उनके सीने से लगी जैसे बरसों की दूरी हो। ताई, चच्ची, कजिन सब सहन में जमा हो गए। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, पहचान में नहीं आ रही। हिबा हर एक से लिपटी हंसती बातें करती रही, और इस सब हंगामे के बीच बादल खामोशी से गाड़ी का दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ बढ़ा। जैसे मुड़कर भी देखा तो सीधा अपने कमरे की तरफ वो चला गया। कुछ देर के बाद हिबा आगाजान के साथ बैठी राजों न्याजों में मसरूफ थी। आगाजान, उससे मुंह बसोरा, आपने वजू की शादी तय कर दी और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आगाजान मुस्कुराए, अरे तुम तो इम्तिहानात में मसरूफ थी, सोचा परेशान ना करें। हाँ, मगर मैं खानदान का हिस्सा नहीं हूँ क्या? उन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। तुम सबसे बढ़कर हो। वो थोड़ा झुकी और अपनी आवाज आहिस्ता की, और आपके उस सड़े हुए पोते ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, तो सारा रास्ता बातें सुनाई है उसने। आगाजान की भौहें चढ़ गई। क्या ऐसा है क्या? कबा ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर आंखें झुकाई। जी आगाजान, मैं पूछता हूँ उससे, तुम दिल छोटा बिल्कुल मत करो। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर खुश हो गई। तीर निशाने पर लगा था। शाम को ड्राइंग रूम में बाजिल को बुलाया गया। वो आया तो देखा कि आगाजान संजीदा बैठे हैं और हिबा उनके साथ ऐसे बैठी है जैसे कोई मासूम और मजलूम लड़की हो। बाजिल, आगाजान की आवाज गूंजी। क्यों रास्ते में मेरी बच्ची को परेशान किया तुमने? क्या? उछल पड़ा। आगाजान, इस आफत की पुरिया को संभालना आसान है क्या? आप इसकी बातों में आ गए। उसके कारनामे बताऊं तो आप इसे डांटे। बाजिल,
आवाजान ने बाजिल की बात को सुनी अनसुनी करते सख्त लहजे में कहा, मेरी बच्ची को कुछ ना कहो। हिबा चुपके से आंख मारकर बाजिल को देखने लगी। बाजिल के जबड़े भींच गए। आपको पता है, उसे मसरूफ शाहरा पर गाड़ी रखवाकर गोलगप्पे खाए थे। हिबा ने बाजिल से पहले अपना जुमला मासूमियत से मुकम्मल किया और मुझे भी मजबूर किया। बाजिल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। आपने खाए तो नहीं ना, मैं क्यों खाता। उनकी नोक झोंक देखकर आगा चार ने खफीफ मुस्कुराहट छुपाई। बाजिल बच्ची है, चंद दिन के लिए इसे खुश रहने दो। बच्ची? वो बुड़बुड़ाया, ये बच्ची नहीं, मुकम्मल तूफान है। हिबा फौरन मुंह बसोड़ने लगी। देखा आगाजान, ये मुझसे कितनी नफरत करते हैं। बस, आगाजान ने हाथ उठाया। बाजिल, तुम बड़े हो, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। वो गुस्से से कुर्सी से उठने ही वाला था कि हिबा ने अगला तीर छोड़ा। आगाजान, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है शादी में पहनने के लिए। ऐसा ऐसा जिससे दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही हो। बाजिल फौरन खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ। गोया वो खतरा बांध गया था। रुको, आगाजान ने कहा। बाजिल, जाओ उसके साथ और इसको शॉपिंग करवा दो। क्या? वो वाकई हैरान रह गया। आगाजान, मैं? उसे अपने सीने पर उंगली रख के पूछा। हाँ तुम। बाजिल सख्त झिंझलाया। ड्राइवर को भेज दे। नहीं, तुम लेकर जाओगे। आगाजान ने हुक्म सादर किया। चंद दिन के लिए आई है, ऐसे मत करो। वो चंदा में खामोश खड़ा रहा, फिर दांत पींच कर उसे देखा। ठीक है। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने हिबा को घूरा। 10 मिनट है, 10 मिनट में गाड़ी में ना आई तो फिर मैं क़यामत तक नहीं लेकर जाऊंगा। वो गुस्से में कहता बाहर निकल गया। बाहर जाकर जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, हिबा पहले ही पिछली सीट पर बैठी हुई थी। दोनों हाथों से सीट बेल्ट पकड़े बड़ी फर्मा बरदारी से उसने उसे देखा। मैं क्या हूँ? बाजिल छन्नमी से घूरता रहा। तुम का भाई, वो भी इतनी जल्दी? बासिल ने बेसाख्ता पूछा। जब आप धमकी दे रहे थे ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती थी शॉपिंग के मामले में। वो बुड़बुड़ाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। गाड़ी स्टार्ट हुई और चंदमी खामोशी रही। अभी रहबा ने आहिस्ता से रेडियो ऑन किया। मध्यम सा गाना बजने लगा। बात सुने, उसने नरमी से उसे पुकारा। क्या? बादल ने चुपके पीके अंदाज में पूछा। मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लूं? बादल ने माथे पर बल डाला। क्यों, कान खराब है जो आवाज ऊंची कर ली? वो मुंह बसोर कर उसे देखने लगी। ये आपकी अम्मा ने आपको क्या खा के पैदा किया? जब भी बोलते हैं सांप बिच्छू निकालते हैं मुझसे। हिबा ने कहका लगाया। शराब। वो खून ख्वार निगाहों से उसे देखते हुए चिल्लाया, फिर सर झटक कर सड़क की तरफ देखने लगा, मगर इस बार उसने म्यूजिक खुद थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। हिबा ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी बक बक सुनने से बेहतर है बंदा तेज आवाज से कान खराब कर ले। वो बोला तो हिबा मुंह बनाती सीट से टेक लगा के। गाड़ी शाम की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। एक संजीदा मेचोर मर्द और एक जिंदा दिल शरारती सी इमेचोर लड़की, और दोनों के बीच शुरू हो चुकी थी वो मीठी खट्टी लड़ाई जो शायद जिंदगी भर साथ चलने वाली थी। सहन में मेहंदी की रस्म अपने अरूज पर थी। लड़कियों की हंसी, चूड़ियों की खनक और हल्की हल्की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। हिबा सादा पीले जोड़े में सबके दरमियान बैठी गीत गा रही थी। एक रस्म के मुताबिक उसे बाजिल की बहन के हाथों में मेहंदी रखनी थी। कजन ने शरारत में आवाज लगाई। ध्यान से रखना, अगर गिर गई तो बड़ा शगुन हो जाएगा। हिबा जो पहले ही घबराई हुई थी, उसने कांपते हाथों से मेहंदी की प्याली उठाई। पुप्पो उसे घूर रही थी। उनकी आंखों ने उसे अजीब जादू सा किया और अगली लम्हे मेहंदी की प्याली उलट कर सीधा सामने बैठे बाजिल की सफेद कमीज पर जा गिरी। एक लम्हे के लिए पूरा सहन खामोश हो गया। या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? बाजिल की पुप्पो ने माथा पीट लिया। अभी से इतनी लापरवाही? रस्म की भी कदर नहीं है। लड़कियों को सलीका सिखाया नहीं जाता आजकल। हिबा का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में पानी तैरने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज साथ नहीं दे रही थी। मैं वो हाथ से फिसल गया। वो बस इतना ही कह सकी। इतने में बाजिल जब तक खामोश खड़ा अपनी कमीज पर बड़ा सब्ज दाग दिख रहा था, आहिस्ता से आगे बढ़ा। सबको लगा वो गुस्सा करेगा। बस करे सब। आवाज में वही मानूस संजीदगी थी, मगर लहजा नरम था। मेहंदी गिरी है जहर ने, और हाथ फिसलना कोई गुनाह नहीं होता। सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर बेटा, फूफो ने कुछ कहना चाहा। अगर इतनी सी बात पर आप लोग इसे यूं सबके सामने डांटेंगे तो कल को एक घर में सांस कैसे लेगी? फूफो अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। बादल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कमीज की तरफ देखा। वैसे भी अच्छा है, अब सबको याद रहेगा कि बजू की मेहंदी की रस्म थी। खास निशान लग गया। कजन्स दबी दबी हंसी हंसने लगे। हिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये वही बादल था जो हर बात पर थ्योरियां चढ़ाता था।
وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اتنا ہی کہا، بس صرف وہ جو سن سکے، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگنور کیا کرو۔ ہیوا کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی چمک اڑی، پھر وہ سب کی طرف مڑ کر ہنسا، اور اگر رسم دوبارہ کرنی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن اس بار پیالی میں کم مہندی رکھے، میری قمیض کا محدود ایڈیشن ہے۔ صحن میں ہنسی پھوٹ گئی، ماحول کا تناؤ کم ہو گیا۔ ہیبا نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے ہونٹوں پر پہلی بار سچی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا جیسے پہلی بار اس نے بازل کو اپنے اصل روپ میں دیکھا ہے، اور بازل وہ بس چپ چاپ کھڑا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ہیبا آغا جان کے خاندان کی سب سے لاڈلی پوتی تھی، آغا جان کے سب سے لاڈلے بیٹے کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آغا جان نے اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنایا۔ چھوٹی عمر میں ہی ہیبا نے تنہائی اور ذمہ داری کا مزہ چکھا تھا، مگر وہ اسے کبھی زیادہ سنجیدہ نہ ہوئی۔ اس کی شخصیت میں ایک نرم مزاج اور ہلکی سی شرارت موجود تھی۔ وہ کبھی کبھار کزنز اور خاندان والوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتی۔ آغا جان نے ہمیشہ ہیبا کی ہر خواہش اور حفاظت کو مقدم رکھا۔ اسے خاندان کے ہر جشن، رسم اور تقریبات میں نمایاں مقام دیا گیا، تاکہ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ کرے۔ ہیبا کے اندر ایک معصومیت اور ذہانت کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ دیکھنے میں کم سنجیدہ لگتی، مگر اپنے فیصلے اور انداز میں ہمیشہ پختگی رکھتی تھی۔ اس کی ہنسی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور نرم گفتگو خاندان کے لوگوں کا دل موہ لیتی تھی، خاص طور پر آغا جان کا، جو اپنی بیٹی کی طرح سے پیار کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہیبا نہ صرف آغا جان کے لیے ایک لاڈلی پوتی یا بیٹی تھی، بلکہ خاندان کے ہر فرد کے لیے خوشیوں کی چھوٹی سی روشنی تھی، جس نے اپنی موجودگی سے ہر رسم اور تقریب میں رنگ بھر دیا۔ مہندی کی تقریب زور و شور سے جاری تھی، لیکن ہیبا کے سر میں اب درد ہو چکا تھا۔ وہ مجمع سے اٹھ کر حویلی کے اندر تشریف لے آئی، جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ البتہ حویلی خوب جگمگا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ ایک بچہ تیزی سے دوڑتے اس کی طرف آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچنے لگا۔ اس نے جھپٹے سے اس بچے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا بوسہ لیا۔ کیا بات ہے چھوٹے؟ اس نے اپنے سر درد کو پیچھے دھکیلتے موڈ کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ بچہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پرچی دے گیا۔ ہیبا نے حیرانی سے پرچی کھولی۔ اس میں لکھی تحریر نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پرچی پر لکھا تھا، میں بازل اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے تم سے بے انتہا ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے حویلی کے اندر آئی تھی، ٹھٹک کر بار بار الفاظ پر غور کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، اسے بیک طرف سوچا، اور پھر دھیرے دھیرے چلتی وہ بازل کے کمرے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، کسی نے اسے پوری طاقت سے کھینچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس کی چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی، اور گلے کے اندر جیسے آواز کھٹ گئی۔ اسے بیکتے اور مردانہ ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بازل یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ اسے پوری اپنی کوشش کرتے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ اندھیرا ابھی تک چھایا ہوا تھا، اور بازل کی شکل واضح نہیں تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ آپ نے مجھے اس گھٹیا کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ وہ اس زور سے چلائی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا، لیکن اگلے لمحے بازل نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر دکھا دیا۔ بہت ہو گیا اب تمہارا یہ بچپنا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ بڑا ہونا کسے کہتے ہیں۔ ہیبا کا دم گھٹنے لگا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے بازل کی آواز میں تبدیلی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت اس تبدیلی پر غور کرنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر سے کھسکنے لگی، اور یہاں تک کہ اندھیرے میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کوئی نوکیلی چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مقابل جیسے اس پر جھکا، اس نے وہ زوردار انداز میں نوکیلی چیز اس کے دائیں ہاتھ پر ماری تھی۔ بازل کے حلق سے چیخ بلند وہ کراہ کر ایک طرف ہوا۔ وہ دھکا دے کر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور اس سمے ہیبا کو لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اور اس کی روح اس کے جسم سے فنا ہو جائے گی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تیزی سے دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور یہ منظر سیڑھیاں چڑھتے آغا جان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنی جگہ جم گیا تھا کہ بازل کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ ان کی آواز لڑکھڑائی اور کانپتے قدموں سے آگے بڑھے۔ تبھی بازل کے کمرے سے سمیر اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے باہر نکلا۔ آغا جان اور سمیر کی نظریں ملی تو مسکرائے۔ ارے آغا جان آپ، یا میں ذرا بازل کے کمرے کا واش روم یوز کر رہا تھا۔ اسے یہ کہہ کر بات ختم کی، اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے محفل میں غائب ہو گیا۔
लेकिन आगा जान को सब समझ आ चुकी थी। इस एक मंजर ने उनसे एक ऐसा फैसला करवाया जिससे अब क़यामत तक वो पीछे हट नहीं सकते थे। हिबा को अब तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उन्होंने अपने दिल में दोहराया। और अगली सुबह उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दोनों दीवार का हिला के रख दिया। खासतौर पर बाज़िल का दिल छलनी हो गया। हवेली की सहल में सब जमा थे, कोई अपने कपड़ों की फिक्र में था, कोई हवेली की सजावट पर गौर व फिक्र कर रहा था, तो कोई निकाह के बाद के इंतजामात की बात कर रहा था। लेकिन आगा जान एक गहरी सोच में गुम थे। तभी ताइमी ने उनकी खामोशी को महसूस किया तो फौरन से उनसे बात की। क्या बात है आगा जान, आप बहुत खामोश दिखाई दे रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने दवाई तो ली थी ना? वो गहरी सोच में से जागे और उन्होंने पास बैठे बाज़िल को देखा, जो कि अपनी अम्मी की बात सुनकर फिक्रमंदी से उनकी तरफ पड़ा। हिबा कहाँ है? उन्होंने बस इतना ही उसने पूछा और किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो अपने कमरे में सो रही होगी, कह रही थी कि कल बहुत थकन हो गई थी, इसलिए देर से उठेगी। चची जान ने इतला दी तो आगा जान ने तमाम लोगों का गला खंगार कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आज फरीना की शादी है और इसके साथ एक और अहम ऐलान भी मैं करना चाहता। बाज़िल जवामा फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। आगा जान के चेहरे पर संजीदगी देखकर एक लम्हे के लिए ठटक गया। उससे फ़ोन बंद किया और उनको उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इस निकाह के साथ एक और निकाह भी होगा। हम लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ने कभी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें ऐसा आखिर क्या हो गया था? फूफा जान भी तिल मिलाई थी और समीर के कान भी खड़े हो गए। बाज़िल अलबत्ता खामोशी से उनकी अगली बात का इंतज़ार करने लगा। आज फरीना और तैमूर के निकाह के साथ साथ बाज़िल और हिबा का निकाह भी होगा। ये सुनते ही वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसे अभी तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ और इस हवाले से मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। बाज़िल, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। वो तमाम लोगों को आपस में चामुगोइयाँ करती छोड़ अपने कमरे में टहल कर बाज़िल का इंतज़ार करने लगे। बाज़िल का दिल चाहा कि घर छोड़ कर ही कहीं चला जाए, चाहे उसके फैसले, उसकी ख्वाहिश का कोई एहतराम नहीं था। वो मरे मरे कदमों से आगा जान के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। बाज़िल उनके सामने खड़ा हो गया। बैठ जाओ। लेकिन वो खड़ा ही रहा। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इतना बड़ा फैसला मेरे इल्म में लाए बगैर आखिर कैसे कर लिया? वो उनकी इज्जत करता था, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता था। उसे मेचोर लड़कियां पसंद थी, उसी की तरह संजीदा और हिबा में और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। तुम जानते हो कि हिबा मुझे इस हवेली में सबसे ज्यादा प्यारी है। वो मेरी जिंदगी का दूसरा रूप है जिसे देख देख कर मैं जीता हूँ। आगाजन ने तमहीद बांधी थी। बाज़िल सीने पर बाजू लपेटकर सर झुकाए उनकी बातें सुनने लगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी में खुदा ऐसे इशारे देता है कि फिर उसके बगैर कोई चारा नहीं बचता। वो मेरे इकलौते बेटे की जायदाद की मुकम्मल तौर पर वारिस है और ये मैंने उसे तोहफे में दी है। शायद यही जायदाद उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये शादी करके उसके मुंह को बंद कर दो। आगा जान ने अफसोस भरी निगाहों से उन्हें देखा। हिबा के लिए आपके दिल में बहुत हमदर्दी है और मुझे इस बात का एहतराम भी है, लेकिन मैं आगा जान मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ? मैं अगर फर्मा बरदार हूँ, संजीदा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हर कोई मुझ पर अपने फैसले थोपे। आगा जान ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और अगली पल कैसा मंजर बाज़िल ने देखा जिसके बाद वो कुछ भी कहने से अपने आप को बाज रखने लगा। आगा जान ने बेख्तियार अपनी शाल उतार कर उसके कदमों में रख दी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो या आखिरी वसीयत। तुम चाहो तो मेरे मरने के बाद उसमें रद्द बदल कर देना, कि मेरे होते हुए मैं हिबा का मुस्तकबिल महफूज करना चाहता हूँ। उनके लहजे में दर्द ही दर्द था। बाज़िल ने सर झुका लिया और आगे बढ़कर अपने कदमों में पड़ी आगा जान की शॉल उठाकर उनके कंधों पर फैला दी। मैं अब कोई सवाल नहीं करूंगा, ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और आगा जान ने नम आंखों से मुस्कुरा दिए थे। बाज़िल, मुझे तुम पर भरोसा है। एक तुम ही वाहिद इंसान हो जो हिबा को उसकी तमाम तर गलतियों और लापरवाहियों के साथ कबूल कर सकते हो।
शाम हवेली के आंगन में सुनहरी किरणों के साथ होती थी। हिबा थोड़ी देर पहले ही उठी थी और अब खाना खा रही थी। तभी ज़हरा ने आगे से उसे मुबारकबाद दी। मुबारक हो, तुम्हारे तो दिन फिर गए। हवेली का सबसे हैंडसम लड़का तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया। हिबा के हाथ से चम्मच छूट कर गिर गया। क्या बकवास कर रही हो? वो अपनी जगह से खड़ी होगी। उसे ज़हरा पर बहुत गुस्सा आया। उसे बाजिल नाम से कल रात से नफरत हो गई थी और किसी से वो नफरत नजरें नहीं मिलाना चाहती, खास तौर पर बाजिल से। वो बाजिल एक ऐसा दरिंदा निकला जिसने अपनी समझदार संजीदगी के पीछे तमाम तर शैतानियत को छुपा लिया था और हिबा को नफरत सी हो गई थी। बको मत। ज़हरा हंस पड़ी। ये बकवास नहीं, हकीकत है। हिबा, तैयारी करो पिया घर जाने की। ओ, मेरा मतलब है अपने घर से बाजिल के घर तक जाने की। हिबा ने तड़प कर उसे देखा। आंखों में बेपनाह आंसू भरने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका दिल तेजी से धड़का। ये कैसे हो सकता है? वो बस इतना ही कह सकी। तभी उसे अपने पीछे आगा जान की आवाज़ सुनाई दी। हिबा बेटा। उन्होंने ये कहती अपनी बाहें फैलाई तो वो रोते हुए उनके सीने से लग गई। अपने आगा जान पर भरोसा है ना? उसे निगाहें उठाकर नम आंखों से उनकी तरफ देखा। पर बाबा, वो प्यार से कभी कभी उन्हें बाबा भी कहती थी। अगर कभी कुछ नहीं बेटा, मैं जानता हूँ बाजिल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि साबित करके दिखाएगा वो। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ अपने हाथों के प्याले में लिया और चेहरे पर पूसा दिया तो हिबा उनके गले लगकर तरफ तरफ करो पड़ी। सारे इतजाजात दम तोड़ गए। आगा जान की आंखों में ऐसी उम्मीद थी कि वो इनकार न कर सके, लेकिन उन्हें क्या बताती कि वो जिसे उसकी काबिल समझते हुए दरिंदा है। ऐसा दरिंदा जिसने अपनी हैवानियत को अपनी संजीदगी के पीछे छुपा रखा था। हवेली अब कल से ज्यादा चमकेगी। शाम होती हवेली की सारी लाइटें जल उठी और हवेली बाजार का मंजर पेश कर रही थी। हवेली का बड़ा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। सफेद और सुनहरी पर्दों के बीच काजी साहब मुसन्नत पर बैठे थे। मर्द एक तरफ, औरतें दूसरी तरफ। रस्म व रवाज की सरगोशियां थी, दुआओं की आवाजें और खुशियों की हल्की सी चमक हर तरफ फैली थी। सबसे पहले फरीना और तैमूर का निकाह होना था। फरीना सुरख जोड़े में बैठी थी। चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी आंखों में यकीन था जैसे उसने अपना हमसफर सोच समझकर चुना हो। तैमूर भी पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। जब काजी साहब ने सवाल किया, फरीना बिनते अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? पर्दे के पीछे से साफ, मजबूत और खुशी से भरपूर आवाज सुनाई थी। 3 बार कबूल है के बाद हॉल में मुस्कुराहटें फैल गई। तैमूर ने भी इत्मीनान से जवाब दिया। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। ये एक ऐसा जोड़ा था जिसके दिल में एक ही सिमत थे, मगर इस हाल में चंद कदम के फासले पर दूसरी कहानी भी जन्म ले रही थी। अब बारी थी बाजिल और हिबा की। हिबा पहले सुनहरी लिबास में बैठी थी। सफेद चेहरा हो चुका था, आंखें झुकी हुई थी। दिल में अजीब सा बोझ था। रात का मंजर उसके जहन में बार बार उभर रहा था। अंधेरा कमरा, बाहरी आवाज और वो धक्का, क्या वो वाकई बाजिल था? उसके दिल में उलझन थी। एतमाद टूटा हुआ था। उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, ना जहनी तौर पर ना ही जज्बाती तौर पर। उधर बाजिल मर्दों की कितार में बैठा था। चेहरा संजीदगा, पेशानी पर हल्की सी तफक्कुर बड़ी लकीर बनी थी। ये सब अचानक क्यों हुआ? आगा जान ने मुझसे मशवरा तक नहीं किया। हिबा, वो तो कल तक मुझसे लड़ती थी, आंखों में शरारत थी। आज उसकी नजरें मुझसे गायब क्यों हैं? उसे रात के वाकये का इल्म नहीं था। वो बस इतना जानता था कि क्या हुआ है, जिसने आगा जान को ये फैसला करने पर मजबूर किया। तभी काजी साहब की आवाज गूंजी, हिबा बिनते सफीर, क्या आपको बाजिल अहमद से ये निकाह कबूल है? पर्दे के पीछे खामोशी छा गई। चंद लम्हे गुजर गए। सबकी नजरें उसी सिम थी। हिबा के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कबूल है कह दो, क्या वाकई ये मेरी जिंदगी है? आगा जान की नरमाहट बड़ी निगाह उस पर थी। हिबा ने आंखें बंद की, आवाज मध्यम की और लहजा बिल्कुल साफ था। कबूल है। 3 बार कबूल है कहने के बाद जैसे उसकी सांस टूट गई। अब सवाल बाजिल से था। बाजिल बिनते अहमद, क्या आपको हिबा सफीर से ही निकाह कबूल है? बाजिल ने एक लम्हा आंखें बंद करके पर्दे की सिमत देखा, जहां वो जानता था हिबा बैठी है, कि मेरी जिम्मेदारी है तकदीर का फैसला। उसे गहरी सांस थी। कबूल है। उसकी आवाज मजबूत थी मगर दिल में हलचल थी। निकाह मुकम्मल हो चुका था। हॉल में मुबारकबादों की आवाजें गूंजने लगी थी। एक तरफ तैमूर और फारीना मुस्कुरा रहे थे। उनकी नद्दोमर्मियान नजरें मिल रही थी। हल्की सी शरारत, शर्म और हल्की सी खुशियां झलक रही थी और वो मुस्तकबिल के ख्वाबों में कदम रख रहे थे। दूसरी तरफ बाजिल और हिबा
एक ही हॉल में मौजूद होकर भी एक दूसरे से मीलों दूर थे। ना नजरें मिली, ना मुस्कुराहटें उभरी। और हिबा सोच रही थी कि क्या मैं इस शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकूंगी जिससे मैं खौफजदा हूँ। और बादल सोच रहा था, ये लिखा जिम्मेदारी है या आजमाइश। और क्यों लग रहा है कि हिबा की आंखों में मेरे लिए कोई सवाल छुपा है। और एक ही छत तले दो निकाह हुए। एक मोहब्बत की इब्तिदा था, दूसरा एक राज, एक गलत फहमी और तकदीर के फैसले का संगम। और शायद कहानी का सफर अब शुरू होना था। रुखसती हो चुकी थी। फरीना रुखसत होकर ससुराल लौट गई, जबकि हिबा बादल के कमरे में थी। दरवाजे के बाहर खड़े बादल ने गहरी सांस ली। मैं ही क्यों? हर बार जिम्मेदारी मेरे हिस्से में क्यों आती है? मैंने क्या किया है जिसकी सजा यूं मिल रही है? हॉल की रोशनी और मुबारकबादों से दूर ये कमरा अजीब सा सुनाटा ओढ़े खड़ा था। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे में मध्यम रोशनी थी। हिबा ईने के सामने खड़ी थी। दुल्हन का जोड़ा भी तन पर था, मगर उसके कंधों से दुपट्टा ढलक चुका था। उसकी सारी रहनाइयां बादल के दिल पर क्यामत बनकर उभरी थी। कुछ रिश्ते का तकाजा भी था, लेकिन हिबा की आंखें सुर्ख थी, काजल फैल चुका था। बादल एक लम्हे को रुक गया। वो वाकई खूबसूरत थी, मगर उस वक्त उसकी खूबसूरती में चमक नहीं, दर्द था। उसे धीमी आवाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने कोई जवाब न दिया। वो तेजी से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तो बादल ने उसे थामा था, इंतहाई नरमी से। हिबा ने ठहर कर जहर खन निगाहों से उसे देखा। कहाँ की तैयारी है इन एक्सपेक्टेड बेगम? जरा मुझे खराज तो लेने दे। उसे अपने लहजे को इंतहाई रोमांचपूर्ण बना दिया। इतना मासूमियत मत दिखाए, हिबा ने जोरदार आवाज में कहा। बादल रुका। क्या मतलब? हिबा उसकी तरफ मुड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर लहजा हद से ज्यादा कड़वा। जो कुछ रात आपने किया, उसके बाद ये सलाम दुआ अच्छी नहीं लगती। बादल के चेहरे पर उलझन उभरी। हिबा, साफ साफ बात करो। साफ? वो हंस दी। वो हंसी जो रोने से ज्यादा तकलीफ होती है। अंधेरे में बुलाना, दरवाजा बंद करना, और फिर उसकी हिचकियां बंद हो गई। वो रुक गई, सांस टूट गई। आपको याद नहीं? बादल की आंखों में गुस्सा उतरा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। झूठ। हिबा चीखी। पर्ची पर आपका नाम था, आवाज आपकी थी। वो रो पड़ी। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं मैं नहीं था। वो चिल्लाया। तो फिर कौन था? उसने उसके सीने पर हाथ मारा। कौन मेरी इज्जत से खेल सकता है इस घर में? आपके सिवा कौन जुर्रत करेगा? ये जुमला तीर की तरह दिल पर लगा। बादल ने उसका हाथ झटक दिया। हद है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? मैंने सब सुना था। आप ही थे। आप ही ने कहा था कि कब से इंतजार था। हिबा ने अपना चेहरा अपने हाथों में गिराया। बस। बादल की आवाज गूंजी। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे उसकी बातों से फांसना चाहता। अगर मैं ऐसा इंसान होता ना, तो आज तुम यूं सीधी खड़ी मुझ पर इल्जाम ना लगा रही होती। हिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर आगा जान ने फौरन निकाह क्यों करवा दिया? क्यों? वो चीखी। बादल खामोश हो गया। एक लम्हे को ये जवाब उसके पास भी नहीं था, मगर उसने गहरी सांस भरकर सख्त नजरों से उसे देखा। निकाह हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कह दो। वो उसे वार्निंग देने लगा। मैं सच कह रही। हिबा की आवाज टूट गई। मैंने आपको पहचाना था। वाह, बहुत खूब। अंधेरे में? उसने तंज किया। तुमने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं? ये जुमला सीधा हिबा के दिल में लगा। वो बेड पर बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे आपसे नफरत है, उसने सिसकते हुए कहा। ये अल्फाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आया। बादल चंद लम्हे साकित खड़ा रहा। फिर उसने सर्द आवाज में अपनी बात मुकम्मल की। नफरत रखो, मगर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो अलमारी की तरफ गया, अपना तकिया उठाया। हिबा ने आंसू में भीगी आंखों से उसे देखा। कहाँ जा रहे? जहां मुझ पर मुजरिम का ठप्पा ना लगाया जाए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हिबा की आवाज ने उसका पीछा किया। सच से भागने से सच बदल नहीं जाएगा। बादल रुका नहीं। दरवाजा खुला, फिर जोर से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ हिबा की सिसकियां रह गई, और पहली रात जो किसी ख्वाब की इब्तदा होनी चाहिए थी, इल्जाम और नफरत की दीवार बन गई। बादल की आंख सुबह देर से खुली, सर भारी था। रात की तलख गुफ्तगू सहन में गूंज रही थी। उसने एक लम्हे को कमरे में नजरें दौड़ाई। हिबा नहीं थी। रात वो कमरे से निकल गया। फिर सुबह वापस आया तो हिबा कहीं नहीं थी। बेड सजा हुआ था, उसका जोड़ा भी गायब था। उसके दिल में अजीब सा एहसास जागा। वो नीचे आया। डाइनिंग हॉल में उसकी वालदा नाश्ता लगा रही थी। अम्मी, हिबा कहाँ है? उसके लहजे में तशवीश थी। वो अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने गई है। समीर के साथ गई है। उसे रास्ता मालूम था। चाय का कप बादल के हाथ में काम किया। समीर के साथ? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई थी। उसी में आगा जान भी वहां गए। क्या कहा तुमने?
اس کی والدہ نے دوبارہ سے دہرایا، ہبا سمیر کے ساتھ کی ہے؟ آغا جان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بازل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آج شادی کو پہلا دن اور وہ سمیر کے ساتھ چلی گئی؟ ان کی آواز میں گرج تھی۔ ہبا، اب ہماری ذمہ داری ہے، اور کام سمیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہیں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ وہ بے حد غصہ ہوئے۔ بازل کا سر جھک گیا۔ رات کی لڑائی، اس کا کمرہ چھوڑ کر چلے جانا، سب یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ سوچنے کا وقت نہیں ہے نا۔ آغا جان نے بات کاٹ دی، شوہر ہو تم اس کے، تمہاری غیر موجودگی میں کوئی اسے لے کر جائے گی مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بازل کے دل میں پہلی بار بے چینی سی جاگی۔ دوسری طرف گاڑی شہر کی سڑکوں پر روا دوا تھی۔ ہبا کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھی، رات کے آنسو ابھی سوکھے نہ تھے۔ سمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، کیوں رو رہی ہو؟ ہبا نے چہرہ موڑ لیا، کچھ نہیں۔ اسے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، کیا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ یہ سوال تیر کی طرح ہبا کے دل پر لگا۔ ہبا نے لب پیچ لیے، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہبا نے جھٹلایا۔ سمیر نے نرم لہجہ اختیار کیا، دیکھو میں تمہارا اپنا ہوں، مجھ سے شیئر کرو، کیا اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ہبا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ مان ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سمیر کی آنکھوں پہ ایک لمحے کو چمک آئی، مگر اس نے فوراً ہمدردی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میں جانتا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا کہا؟ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا کہ جلدی میں فیصلہ ہوا تھا۔ آغا جان نے سوچے سمجھے بغیر نکاح کروا دیا، مگر سچ چھپتا نہیں ہے۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ وہ لوگ ڈاکومنٹس اٹھا چکے تھے۔ سمیر اسے اندر لے آیا، ایک کونے کی میز پہ بٹھایا۔ تم کافی پیو گی؟ تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے۔ ہبا خاموش بیٹھی، کافی سامنے آئی۔ کب سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ سمیر جھکا، دیکھو ہبا، میں سچ کہوں؟ وہ خاموش رہی۔ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، بد کردار آدمی ہے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے اس کی طبیعت میں غرور ہے، اور تم جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرے گا۔ ہبا کا دل ڈھولنے لگا، مگر نکاح ہو چکا ہے۔ ہبا نے گویا اسے یاد دلانا چاہا، نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ خلا کا حق تمہیں ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ اور قریب چکا، میری مانو تو خلا لے لو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم اکیلی نہیں ہو۔ سمیر نے اپنے زہریلے جملے سے اس کے دل میں زہر گھلا۔ ہبا کی انگلیاں کپ کے گرد مضبوط ہو گئی۔ کیا واقعی جلدی میں فیصلہ ہوا؟ کیا بازل مجرم ہے؟ اس کے ذہن میں رات کی آواز گونجی، اندھیرا، دھکا، پھر صبح کا منظر یاد آیا۔ بازل کی آنکھوں میں چھپی حیرت بھی وہ الجھن میں ڈوب گئی۔ سمیر نے آخری بار کیا، سوچ لو، زندگی ایک بار ملتی ہے، غلط آدمی کے ساتھ کیوں گزارنی ہے؟ ہبا خاموش رہی۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور پہلی بار شک صرف بازل پر نہیں بلکہ اپنے فیصلے پر بھی ہونے لگا تھا۔ ہبا گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھے رو پڑی تھی۔ آنکھیں جل رہی تھی، سمیر کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ تمہارے لائق نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی رات کا منظر دوبارہ ذہن کے پردے پر ابھرا، میں نے نہیں کیا۔ بازل کی آواز بھی گونجی، دل فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہبا، بازل کی آواز تھی۔ وہ خاموش رہی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار آواز میں حکم تھا، دروازہ کھولو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دروازہ کھولا۔ ہبا نے نظریں نہیں اٹھائی۔ بازل اندر آیا، چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں بے چینی تھی۔ تم مجھے بتا دیتی کہ میں تمہیں لے جاتا۔ جملہ سیدھا سا تھا مگر ہبا کو دل میں چپ گیا۔ پھانسی، اس کی طلق ہنسی بازل کی روح چھلنی کر گئی۔ کیا فرق پڑتا، اب کو تو ویسے بھی پرواہ نہیں۔ بازل نے بھویں سکیری، پرواہ نہیں؟ میں صبح سے سب کے سامنے کھڑا شرمندہ ہو رہا ہوں۔ آغا جان نے صاف کہا کہ تم میری ذمہ داری ہو۔ ذمہ داری؟ ہبا نے فوراً بازل کی بات کاٹی۔ اس کی آواز الجھی ہو گئی۔ میں آپ کے عمل سے آپ کی ذمہ داری نہیں، بوجھ لگتی ہوں۔ بازل نے گہری سانسی، تو کیا چاہتی ہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہوں؟ اسے بھی غصہ آ گیا، کم از کم یہ تو نہ جتاتے کہ میں آپ پر بوجھ ہوں۔ یہ جملہ بازل کے دل کو لگا۔ میں نے کب کہا تم بوجھ ہو؟ وہ چڑ گیا، کل رات ہی ثابت کر دیا۔ ہبا نے جتایا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بازل کا لہجہ سخت ہو گیا، تم ہر بات کو اسی سمت کیوں لے کر جاتی ہو؟ وہ پوچھنے لگا، کیونکہ وہ سب ہوا تھا اور میں اسے بھول نہیں سکتی۔ ہبا چیخی، آپ ماننے کو تیار ہی نہیں؟ بازل نے اپنی گن پٹی مستی، کیونکہ میں نے کیا ہی نہیں۔ اچھا تو پھر کون تھا، بتائیں؟ اسے بازل کو چیلنج کیا۔ بازل ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور تم اتنے یقین سے میرا نام کیسے لے سکتی ہو؟ ہبا کی آنکھیں بھر آئی، کیونکہ میں نے مان لیا تھا کہ آپ ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہبا کیا اعتراف تھا، یہ بازل کے لیے سب سے تکلیف دہ تھا۔
बासिल जैसे अंदर से साकित हो गया। यानी तुम मुझे इतना ही जानती? हिबा ने नजरें झुका ली। हाँ, आप मुझसे चिढ़ते रहे, मैंने आपको कभी नरम देखा ही नहीं। ये सच था। बासिल कुछ लम्हे उसे देखता रहा। अब ये एक दूसरा इल्जाम है। खैर, उसके लहजे में दुख ही दुख था। मैं अब जीना ही नहीं चाहती। वो फट पड़ी। मेरी जिंदगी एक दिन में बदल गई। आज समझते क्यों नहीं? उसकी आवाज टूट गई। बासिल का गुस्सा लम्हा भर को कम हुआ, मगर अना अभी बीच में थी। मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ। बासिल ने वार्निंग दी। मैंने नहीं बनाया, हालात ने बनाया। दोनों की सांसें तेज थी। हिबा की आंखें बार बार बह रही थी। चंदन में दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर अल्फाज अना के नीचे दब गए। आखिरकार बासिल ने हिम्मत की और सर्द लहजे में जो कुछ खास ने हिबा को और ज्यादा तोड़ दिया। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि मैं मुजरिम नहीं हूं तब बात करना। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ पड़ा। हिबा की आवाज पीछे से आई तो वो साकित हुआ। और जब आपको लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही तब वापस आइएगा। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। दोनों एक ही घर में थे, लेकिन सदियों का फासला था। हिबा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेड के किनारे बैठी थी, हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह रो रही थी। आप माने या ना माने, वो आप ही थे। वो रोते हुए बोली तो बासिल जो दरवाजे के पास खड़ा था। चंद में उसने हिबा की बात को सोचा। फिर पहली बार उसने अपने दिल को नरम किया। दरवाजा दोबारा खोलकर अंदर आया। हिबा, वो करीब आया। मेरी तरफ देखो। हिबा ने आंसू से भीगी आंखें उठाई। उसमें इल्जाम भी था, खौफ भी, और टूटा हुआ यकीन भी। बासिल उसके सामने बैठ गया। उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी। ठीक है, आज अना एक तरफ रख देते हैं। मुझे सब बता, उस दिन क्या हुआ था, शुरू से एक एक बात। हिबा चौंकी। शायद उसे थका ना था कि वो सुनने को तैयार होगा। उससे गहरा सांस भरा, फिर गोया हुई। मेहंदी की रात में थक गई थी। मुझे एक बच्चे ने पर्ची दी, उस पर आपका नाम था, लिखा था फौरन आओ, जरूरी बात है। वो ठहर ठहर कर कहने लगी। बादल की आंखों में संजीदगी तो आई। फिर उसकी अगली बात का मुंतजर था। कमरे में अंधेरा था। मैंने आपको पुकारा, आपने मेरा बाजू पकड़कर अंदर खींच दिया, दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांस भारी हो गई। आवाज हूबहू आप जैसी थी। उसने कहा कि कब से इंतजार था। वो रुक गई। बादल के जबड़े पींच गए। वकूल तुम्हारे वो मैं था, तो क्या चेहरा दिखा था तुम्हें? ये बड़ी सर नफी महला। अंधेरा था, मैं डर गई थी, बस भाग गई कमरे से। चंद में मुकम्मल खामोशी पे बादल ने उसे गौर से देखा। मेहंदी की तकरीब करीब कहाँ रही थी इस वक्त? उसने खुद को जहन पर जोर दिया। लॉन में। हिबा ने दोहराया तो बादल एकदम सीधा हो बैठा। लॉन में कैमरे लगे होंगे पूरे एरिया में। हिबा ने चौंक कर से देखा। कैमरे? हाँ, आगाजा ने सिक्योरिटी के लिए लगवाए थे। अगर तुम्हारे बाद कोई उस कमरे में दाखिल हुआ था तो वो रिकॉर्डिंग में होगा। कमरे का इल्म किसी को नहीं सिवाय मेरे। हिबा की सांस रुक सी गई। यानी सच सामने आ सकता है। बादल की आंखों में पहली बार वाज़ेह अज़्म था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो खड़ा हो गया। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, ठीक है, तुम डरी हुई थी, लेकिन अब हम अंदाजों पर नहीं, सबूत पर बात करेंगे। हिबा के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। एक खौफ भी था और उम्मीद भी। अगर अगर वो आप नहीं हुए तो? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बादल ने एक लम्हा उसे देखा। तो फिर जिसने मेरा इस्तेमाल किया नाम, वो इस घर में एक दिन मिली रहेगा। उसके लहजे में खतरनाक सुकून था। हिबा के आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उनमें पहली बार तनाव होने का एहसास कम हुआ था। मैंने आपको बहुत बुरा कहा। बादल ने गहरी सांस ली। बातें बात में, पहले सच जान लेते हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका। और हिबा, वो मुड़ी। अगली बार भागने से पहले मुझे मौका देना। दरवाजा खुल गया और बादल के साथ ही बाहर निकली। कमरे में अब पहले जैसा अंधेरा नहीं था। शक की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। हवेली के स्टडी रूम में हल्की सी रोशनी थी। वो ज्यादातर बादल ही इस्तेमाल करता था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन के सामने बादल खड़ा था और हिबा उसके एक कदम पीछे थी। ये 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। बादल ने वीडियो रिवाइंड की। स्क्रीन पर लॉन की तकलीफ साफ नजर आ रही थी। फिर लॉन के कोने में हिबा दिखाई दी। वो जल्दी जल्दी लॉन से निकलती अंदरूनी दरवाजे की तरफ गई। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। हिबा की उंगलियां आपस में जकड़ गई। वीडियो आगे बढ़ी। तकरीबन 5 मिनट बाद स्क्रीन पर एक और साया उभरा। समीर था। वो इधर उधर देखता तेजी से उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। हिबा जैसे पत्थर की हो गई। ये नहीं हो सकता। उसके लब हिले मगर आवाज न निकली। बाजिल का चेहरा सख्त हो गया। जबड़े पीछे हुए थे। उसने वीडियो रोक दी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। समीर,
اس کی آواز میں یقین سے زیادہ صدمہ تھا۔ ہبا کے قدم ڈگمگائے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ پیچھے ہٹی، آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ بازل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، وہ نظر بہت کچھ جتانے والی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ثبوت دیکھیں گے۔ ہبا بلک بلک کر رو پڑی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ تھے۔ وہ آواز بالکل آواز آپ کی جیسی تھی۔ اب ان کے الفاظ آنسوں میں دب گئی۔ اسی لمحے بازل نے گہری لمبی سانس لی، پھر اس کے قریب آیا۔ ہبا نے نظریں جھکا لی، شاید مزید باتیں سننے کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی، مگر اگلے لمحے بازل نے اس کے بازو تھام لیے۔ بس اب وہ نہیں۔ اس کی آواز اب سخت نہیں تھی بلکہ نرم تھی۔ جتنے تم آنسو تم نے بہا لیے کافی ہے۔ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو بد کردار کہا؟ بازل کی آنکھوں میں تکلیف کی جھلک تھی۔ تمہاری باتوں سے بہت چوٹ لگی تھی۔ ادھر، اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ادھر ہبا، بہت زیادہ۔ اس کے الفاظ بے ربط سے تھے، لیکن تمہارا کوئی قصور نہیں، تم ڈری ہوئی تھی کہ میں یہی باور کروایا گیا تھا۔ اسے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پوچھے، اور اب سچ سامنے ہے۔ ہبا اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ پہلی بار بازل نے ہچکچائے بغیر اسے باہوں میں بڑھ لیا۔ آئندہ میرے خلاف فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ پر یقین کرنا۔ ہبا نے سسکیوں کے درمیان سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آغا جان کے پاس موجود تھے۔ میں نے مصلحت کے تحت میں خاموش رہا۔ مجھے پتا ہوتا بات اتنی بڑھ جائے گی تو کبھی خاموش نہ رہتا۔ وہ رکے، پھر انہوں نے بازل کی طرف دیکھا۔ سمیر کو ابھی بلاؤ۔ ان کی آواز میں طوفان تھا۔ بازل نے ہبا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب کوئی تمہیں تنہا نہیں کرے گا۔ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ بازل کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا سمیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر خاموش طوفان تھا۔ اس نے لات مار کر دروازہ زور سے کھلا۔ سمیر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ بازل بھائی، آپ؟ وہ ہکلایا۔ بھائی مت کہو مجھے، وہ دہاڑا۔ بازل کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ پیچھے آغا جان بھی موجود تھے، اور ان کے چہرے کی سختی دیکھ کر سمیر کے رنگ اڑ گئے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سمیر نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا۔ بازل نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ ویڈیو چل پڑی تھی۔ نیندی کی تقریب جاری تھی۔ پھر ہبا اندر جاتی ہوئی دکھائی دی، اور چند لمحوں بعد سمیر کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ تو میں بس بازل آگے بڑھا۔ کیا لینے گئے تھے تم؟ ہاں؟ سمیر خاموش ہو گیا، سر جھکا دیا۔ اسی لمحے شور سن کر پھپھو بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہنگامہ ہے ابھی؟ انہوں نے بازل کو ڈانٹا۔ تبھی آغا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ اپنے بیٹے سے پوچھو اس کے کارنامے۔ پھپھو نے ویڈیو دیکھی تو ایک لمحے کو نظر چڑھائی۔ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پتا ہبا نہیں بلایا ہو اور اب مکر گئی ہو۔ ہبا اس نئے الزام پر تڑپ اٹھی۔ جھوٹ مت بولے پھپھو، وہ چلائی۔ بازل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ کیمروں کا اینگل بدل بدل کر دیکھ چکا ہوں میں۔ یہ سمیری ہے، اور پھپھو آپ کو اب اپنے بیٹے کو سرزنش کرنی چاہیے، نہ کہ ہبا پر الزام لگائے۔ آج ہبا تھی، کل کوئی اور ہوگی، تب بھی یہی کہیں گے آپ؟ بازل نے سختی سے کہا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں تمہاری آواز بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ سمیر، تم نے کہا تھا، بلکہ دہرایا تھا کہ آج اسے برباد کر دوں گا۔ سمیر کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود اگلے پل بازل کا ہاتھ اس کے کالر تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا، اور اس کی چیخ نکل گئی۔ ہبا کا نام بھی لیا تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں سے سیل رواں ہوئے۔ آغا جان نے بازل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو اسے، خود کو گندا مت کرو، سچ سامنے آ چکا ہے۔ سمیر اب جھک چکا تھا۔ میں سے صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا اگر بدنام ہوگی تو تم اسے بلیک میل کر سکو گے۔ آغا جان کی آواز میں نفرت تھی۔ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ ندامت نہیں تھی، بے بسی کے تھے۔ ابا جان، ہم سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ غلطی؟ آغا جان گرجے، یہ غلطی ہے یا سازش؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ آخر آغا جان نے فیصلہ سنا دیا۔ آج سے تم دونوں ماں بیٹے مجھے اس حویلی سے باہر بھی دکھائی دو اور نکل جاؤ بھی اسی وقت۔ سمیر کے قدم لڑکھڑائے۔ پھپھو نے کچھ کہنا چاہا، مگر آغا جان کی ایک نگاہ نے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹے اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ دونوں مجرم تھے، اور جرم ثابت ہو چکا تھا۔ ان کی سازش الٹ گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ کمرے کے باہر ہبا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ تبھی بازل باہر آیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟
ہمارے کمرے میں آنے سے کیوں کھچکچا رہی ہو؟ وہ مسکرایا اور اسے بازو سے تھام کر اندر لے آیا۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار سکون کے تھے۔ مجھے معاف کر دیں۔ بازل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے معافی نہیں، اعتماد چاہیے۔ وہ اسے اپنے قریب لایا۔ آج سے کوئی تمہیں ڈرائے گا نہیں، نہ تم اکیلی ہو۔ ہبا نے پہلی بار پورے استحقاق سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بازل نے بیٹھ کر اسے خود میں پیچ لیا۔ چلو نئی شروعات کرتے ہیں، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر اور غلط فہمی کے۔ اسے دھیرے سے ہبا کے کان میں سرگوشی کی۔ اب صرف محبت ہی محبت ہوگی، کیونکہ ایک میچور مرد ایک امیچور عورت سے محبت کر بیٹھا ہے۔ ہبا پہلے تو مسکرائی، پھر چون کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے عورت کہا؟ یہ سن کر بازل کا کہکا بلند ہوا۔ نہیں میری گلاب، تم تو بلکہ نازک ہو اور انچھوئی سی کلی ہو جسے محبت کی ابیاری سے سیراب کرنا ہے۔ بازل نے معنی خیزی سے کہا تو وہ مسکرا دی، اور اس نے دل ہی دل میں دونوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹ کے لیے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، یہ محبت کی خوشبو تھی، اور پہلی بار اس رشتے میں سکون تھا، وہ ازلی سکون جو اللہ نے اس رشتے کا مقدر بنایا تھا۔